जो भी है हम लोग की जो गाड़ी है एंड द प्रोसेस, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कोड, वो तो बढ़ते जा रहा है, जैसा भी सीख रहे हैं राइट, कोई ना दिक्कत नहीं है. तो बेसिकली आई थिंक दीज आर वन ऑफ द लास्ट things we will be studying in the basics of JavaScript. This is basically revisiting. We are going to revise the advanced object one for the last time. And this is the first point. The point is the object that a method belongs to is called the calling object. वे दो तीन चीज़ है. पहला चीज़ है object, दूसरा चीज़ है method और दूसरी चीज़ है calling object. ऐसे object जिसके अंदर एक method होगा तो वैसे object को बोलेंगे calling object. So yeah, sorry for getting distracted. Coming back to things are more important rather than making an excuse ki I got distracted or something. Okay, so we have created an object, object 1, assigned it an object, property 1, a is to 1, property 2, b is to 2, property c is a special property. Basically it's not a property, basically it's a method. Basically those properties are called methods, which contains an anonymous function in their value part. What do I mean? An object, we have two things. We have key, then we have is to sign, we have value. Look, value is ABC, C only, right? But the value is an anonymous function, wherein you have a value that has an anonymous function in it, and we call it what? We call it a method. C is our method. Contains nothing. Contains, I'm sorry for that. Contains a console log statement. Basically, when this function will be called or invoked, then function calling works. This sentence will be seen on our screen because of this console log statement. Okay, good. We are not invoking it right now. We have just declared this method or say a special property inside our object. Clear? Now when we just invoke it like this, object 1, that is our object's name, dot, or you can dot operator, we use it to navigate through the object's properties or access some properties, right? And C, open and close parentheses. Open and close parentheses are used, or this round brackets are used to basically invoke C. Invoke, okay? So when we'll do that, so basically function calling work, this will be seen on our screen. Right? So answer few questions now, okay? Calling object. What is the calling object here? And what is the method here? First of all, let's answer method. Method is C. C is our method. अब इसे methods name और से methods key name. Okay. Now, where in this method is present? Where this method belongs? Object 1. Object 1 it belongs to, right? So this object 1 is our calling object. It's our calling object for our specific method C. Make sense? Clear हो गया calling object? यो तो अब दूसरे वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं हमारे रिवीजन में. दूसरा पॉइंट कह रहा है द दिस कीवर्ड. जो दिस कीवर्ड है, जो यहाँ पे आप ढूंढो तो आपको देखेगा यहाँ पे दिस का यूज किए हैं और यहाँ पे दिस का. एक कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं ना, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, उसमें से एक दिस एक कीवर्ड है, रिफर करता है टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बताया कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अगर सी नाम का मेथड है और सी नाम के मेथड के अंदर हम लोग दिस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो दिस कीवर्ड कुछ काम करेगा, वो क्या करेगा वो देखो. कैन बी यूज्ड टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट. तो दिस कीवर्ड क्या कर देगा, आपको मतलब इस वाले प्रॉपर्टी का क्या कर देगा, एक्सेस प्रोवाइड कर देगा. यानी कि a का वैल्यू 1 है, ये इस मेथड को, इस फंक्शन को बता देगा. ठीक है, अब ये क्या दिस कीवर्ड पे ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो उसमें लेक्सिकल कॉन्टेक्स्ट और क्या क्या अजीब टाइप का वर्ड्स है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम ऑल. बट फिलहाल के लिए जस्ट नो वन थिंग दैट अगर यहाँ पे दिस कीवर्ड नहीं होता ना इस मेथड के अंदर, ठीक है, तो बोलता A is not defined and B is not defined. But you can say like A is defined, B is defined, bro. But आपको एक और बात बताते हैं कि जब कभी भी एक मेथड, एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ना, तो उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं होता उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज का. तो फॉर दैट वेरी रीजन, टू फिक्स दैट वेरी थिंग, this keyword is used. फिर से पढ़ते हैं. This keyword refers to the calling object. First to the object 2, the calling object, जहाँ पे ये method present है C वाला, ठीक है, and can be used to access the properties of calling object. जैसे this use करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर, अच्छा यहाँ पे देखो console log, यहाँ पे देख रहे हो backtick से start और backtick से end. तो बेसिकली एक टेक्स्ट है, ठीक है, we have a इक्वल टू ए का वैल्यू 1 एंड बी एक्सप्रेशन बी का 2, जो 2 की तरफ पॉइंट आउट. जब हम इस ऑब्जेक्ट को रन किए तो हम लोग ऑउटपुट आया ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी. इस मेथड को रन करते हैं तो वी हैव इक्वल टू 1 एंड बी इज 2. अगर यहाँ पे ना ये सब नहीं लिखते ना, दिस ये वाला अगर दिस मिटाते तो बोलता है ना ए डिफाइंड है ना बी डिफाइंड है, अनडिफाइंड दिखाता है. क्या दिखाता है? अनडिफाइंड.
ANP are undefined. ANP are hopefully made sense, right? This keyword is clear, right? This keyword basically provides access to the properties of the calling object. ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक फंक्शन एक मेथड के अंदर उन प्रॉपर्टीज के वैल्यू के बारे में उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होती। ठीक है, देखो ये आई गेस थर्ड है पॉइंट, यहां से लेके यहां तक एक रिवीजन पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंटरवाइंड है विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या है देखते हैं। डू नॉट यूज एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस का यूज ना करें as it will fail you to achieve the goal of accessing properties from the calling object. This keyword का यूज क्यों करते हैं? This keyword का यूज करते हैं कि उस calling objects की प्रॉपर्टीज उस फंक्शन के अंदर, उस मेथड के अंदर आप यूज कर पाओ, राइट? इजीली हो जाता था, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप एरो फंक्शंस यूज करने लगते हो। अब बताओ मेरे को फंक्शंस कहां पे यूज हो रहा है? मेथड के वैल्यू में फंक्शन आ रहा है ना, मेथड का जो वैल्यू है की और वैल्यू में एक फंक्शन आ रहा है ना, उस फंक्शन के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहां पे एक एनोनिमस फंक्शन लिखा जाता है। देखो बच्चा, फंक्शन बेसिकली टू टाइप्स का मान लो आप। एक डिक्लेयर्ड फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जिनके नाम होते हैं, उनको लिखने का एक तरीका होता है, और एक ऐसे फंक्शंस जिनका नाम नहीं होता, इसीलिए उनको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस, इलॉन मस्क ने एनोनिमस, तो अनक्लियर, इनके नाम नहीं डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो वैसे फंक्शंस कहां पे यूज हो रहे हैं? वैसे फंक्शंस यूज हो रहे हैं हमारे मेथड्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड लिखेंगे ना, उसका जो फंक्शन होगा वो एनोनिमस फंक्शन होगा, उसका नाम नहीं होगा। ठीक है, रीजन भी है कि अगर नाम लिख देते तो फिर की लिखने का क्या जरूरत होता, जैसे कि बी लिखने का क्या जरूरत है, पहले ही नाम डिक्लेयर, दिक्कत हो जाता ना। इसलिए एनोनिमस फंक्शन का वहां पे यूज किया जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, एनोनिमस फंक्शन को नॉर्मली फंक्शन कीवर्ड लिख के ऐसे करके फंक्शन कीवर्ड लिख के ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरामीटर लिखता है बीच में पैरेंथेसिस के बंद, देख रहे हो? फंक्शन कीवर्ड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट और बीच में फंक्शन बॉडी, ऐसे लेके यहाँ तक फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये तो एक तरीका है इसको लिखने का। इसका ES6 ECMA स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 6 जो 2015 का अपडेट है, इतना मत सोचो, बेसिकली वहां पे एक नया तरीका बताया गया है। क्या होता है वहां पे कि इसको शॉर्ट हैंड वे में लिखते हैं। मतलब एक अ शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग दिस इज सिंपली, देखो इसका शॉर्ट हैंड तरीका लिखने का ये है। क्या है भाई? लिखने का ये है कि देखो फंक्शन कीवर्ड को हटा दो, ठीक है, हटा दिया, ठीक है, उसके बाद फंक्शन कीवर्ड को हटा दो और एक एरो दे दो, फैट एरो बोलते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन दे दो। ठीक है, देखो इसी को कैसे लिखते हैं, देखो फंक्शन कीवर्ड को हम लोग ने क्या किया, हटा दिया, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है, और ये पॉइंट आउट कर रहा होगा ऐसे इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ठीक है, और ये हो गया फंक्शन बॉडी, यहाँ पे कंसोल लॉग स्टेटमेंट या कुछ भी यहाँ जो है। तो इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे फैट एरो बोलते हैं इसको, फैट एरो का इस्तेमाल। फैट एरो कहाँ पे आता है? जब हम लोग एक एरो फंक्शन लिखते हैं तो वहां पे फैट एरो आता है। देखो ये सब चीज समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा ना, समझ में नहीं आएगा फिर। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, रेडी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि सर ओके ओके, यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एनोनिमस फंक्शन लिखे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इसको, अच्छा यहाँ देख लेते हैं हम लोग का नया ऑब्जेक्ट क्या है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने न्यू ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको एक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया है, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। पहला प्रॉपर्टी है a, उसका वैल्यू है 1। दूसरा एक मेथड है, क्यों है कि क्योंकि दिख ही रहा है कि मेथड है, ठीक है, b नाम का मेथड है, उसके अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट प्रेजेंट है। जब इसको बुलाएंगे तो आएगा स्क्रीन पे b फंक्शन इज इन्वोक्ड एंड ला 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 ला, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं था, लेकिन थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो एक मेथड है, ठीक है, उसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज किया है। कुछ नहीं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग तरह से लिखा गया है ना। हाँ, यहाँ पे एरो का इस्तेमाल किया गया। हाँ, मतलब एनोनिमस फंक्शन, देखो ये एनोनिमस फंक्शन था, इसका भी एक शॉर्ट वे था लिखने का। किसके अंदर? ऑब्जेक्ट्स के अंदर। वो था ये कि अपना आप कुछ की स्ट्रोक्स बचा सको, आप ये लिखो, बात बराबर है। बेसिकली पे 3 तरीके हैं लिखने के, ये 2 में दिक्कत नहीं है। फंक्शन कीवर्ड हटा दो, जो एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड लिखने का, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप एनोनिमस फंक्शन को और शॉर्ट करने का कोशिश करते हो, उसको आप एरो फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात सेम ही है। बेसिकली इसको शॉर्ट वे में लिखने का तरीका है। तो जैसे ही लिखते हो, देखो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद फैट एरो का इस्तेमाल, एरो फंक्शन का इस्तेमाल बताया ना, उसके बाद किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा?
फंक्शन बॉडी की तरफ और ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो दोस्त, जब तुम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे और दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप ए नाम के इस ए नाम के इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो, तो आउटपुट जब आएगा, जब इस ऑब्जेक्ट को बुलाओगे न्यू ऑब्जेक्ट, जब इस मेथड को बुलाओगे न्यू ऑब्जेक्ट, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप अपना मेथड का नाम लिखते हो, तो आउटपुट जो आएगा दोस्त वो आएगा अनडिफाइंड। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। तो अनडिफाइंड आएगा। क्यों आया भाई? पहले तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा था। अगर सी को अगर इस तरह से लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, सी को अगर इस तरह से लिखते तो कोई दिक्कत नहीं देता, है ना। या और लिखें, ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, बीच वाला प्रॉपर्टी सेम ही है, ठीक है। इस तरह से लिखते तो कोई सी को तो कोई दिक्कत नहीं देता। क्यों दे रहा है सब समझेंगे। लेक्सिकल कॉन्टेक्स्ट दिस के बारे में, ये वो सारे की सारी चीज़ों को जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इट रियली एव्ड माई हेड फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो वो वाला हम लोग देख लेंगे। अभी इतना समझो, ठीक है, कि कभी भी एरो फंक्शंस का यूज नहीं करना है, इस तरीके का यूज नहीं करना है। इस तरीका को यूज करो या कंप्लीट डिक्लेयर करो फंक्शन कीवर्ड को, ठीक है, या शॉर्ट तरीके से लिखो, लेकिन एरो फंक्शंस का यूज नहीं करना है। एरो फंक्शन जहां यूज करोगे वहां पे दिस कीवर्ड फेल हो जाता है आपको अपने गोल अचीव करने में। थैंक यू। हाय So this is I think the 4th या 5th revision point. The JavaScript objects do not have built-in privacy. ठीक है, इस पे मैंने वीडियोस बनाया, मतलब बेसिकली हर एक टॉपिक में मैंने वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो rather there are conventions. अब मैं पढ़ता हूँ उसका तो कुछ अपना स्टोरी बताते हैं। Conventions to follow to notify other developers about the intent of the code. देखो अभी ना यहाँ से लेकर बात एक लेक्चर ही स्टार्ट हो गया, मतलब एक रैंट स्टार्ट हो गया भाई। मतलब पता नहीं मेरे को, मतलब ज़्यादा कुछ codecademy.com से ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं about using underscores in the property name, but whatever, I'll try to explain you everything. देखो बोलता है जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी क्या नहीं है? कि भाई जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यू को आप चेंज ना करो। देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप अ डेवलपर फ्रॉम डूइंग दैट। मेकिंग सेंस या, बट यू कैन नोटिफाई देम कि भाई देखो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा है ना, हाँ, तो प्लीज इसको म्यूटेट मत करिएगा भैया, ठीक है। मतलब इसको म्यूटेट करने से रोकता है अंडरस्कोर, बेसिकली इंटेंट शो करता है। अंडरस्कोर समझते हो ना भाई, ये वाला पोलियो, POLIO, पोलियो, अंडरस्कोर आगे में, अंडरस्कोर पोलियो, व्हाटएवर, इट्स अ डिजीज, शुडंट मेक फन ऑफ, सॉरी, दैट्स इट। तो अंडरस्कोर शो करता है क्या? कन्वेंशन है एक अंडरस्कोर लिखना, कि जो शो करता है, नोटिफाई करता है अदर डेवलपर्स कि इज्जत करो भाई मेरे इस अंडरस्कोर की, प्लीज चेंज मत करो। क्या आपसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, कैसे? आवर ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू 500, 5000, पापा दादा नाना किसी का भी नाम लिख दो। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वो उसके बाद आप console.log आउटपुट प्रॉपर्टी करोगे तो देखोगे कि ये चेंज हो चुका है, इसका वैल्यू चेंज हो चुका है। लेकिन क्या अच्छी बात है? क्या माँ बाप को गाली देना अच्छी बात है? नहीं ना, इसलिए ना करें चेंज। होपफुली मेड सेंस। और बेसिकली अब आगे में बोलता है गेटर्स सेटर्स नाम का एक मेथड है। बेसिकली वो GET और SCT होता है, ठीक है, वो कीवर्ड्स है उसके, तो उनको यूज करके एक प्रॉपर्टी के वैल्यू को बिना डिस्टर्ब के सेफली चेंज करना या एक्सेस करना वो प्रोवाइड होता है। वो सीखेंगे अभी नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट। सो दिस इज आई गेस द 5th पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने कहा सेटर्स एंड गेटर्स पढ़ने वाले हैं, तो देखो सेटर्स एंड गेटर्स आर मेथड्स दैट अलाउ फॉर मोर डिटेल्ड वे ऑफ एक्सेसिंग। गेटर्स से एक्सेसिंग होता है और सेटर्स से असाइनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब यू गोना गेट मोर डिटेल्ड वे। भाई सब मोर डिटेल्ड वे होता क्या भाई? असाइन कर दो ना चुपचाप इक्वल टू ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। ना बेटा, ना बेटा, ना। देखो यहाँ क्या, ध्यान से देखो तो यहाँ पे इफ और एल्स स्टेटमेंट है। दिस आर नाइटमेयर्स फॉर मी बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज had a problem with if and else statement. I still do, and I think, pray for me, जब मैं DSA स्टार्ट करूंगा, data structures and algorithms, so it might get better. But right now my coding skills, problem solving skills are zero beta sannata. But for now, let's just try to understand things, right? I'm just trying to understand this. So yeah, yo, क्या कह रहे थे हम? हाँ, कह रहे थे अगर आप get keyword यानी get method जो इस method पे लगा हुआ है, get method जो इस method पे लगा हुआ है, तो बेसिकली हो क्या रहा है अंदर आप देखो ब्लॉक कोड के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इफ स्टेटमेंट है। वहां पे जाने से पहले एक बार और देख लें कि है क्या। ऑब्जेक्ट 1 नाम का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर अंडरस्कोर A नाम का हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया है, अंडरस्कोर B नाम का दूसरा प्रॉपर्टी बनाया है जो हाई और ब्रो रिस्पेक्टिवली कंटेन करता है स्ट्रिंग्स या कहो टेक्स्ट, ठीक है। तो बात यह है कि आप बताओ मुझे कि अंडरस्कोर क्यों लिखा। अंडरस्कोर लिखा है, दिस इज अ कन्वेंशन कि जो प्रोग्रामर है यानी मैं नहीं चाहता हूं कि A_A
इस वाले प्रॉपर्टी को म्यूटेट किया जाए या चेंज किया जाए इसके ओरिजिनल वैल्यू को। और सी में गेट कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है? गेट कीवर्ड से हम लोग को एक्सेस मिलता है ओवर प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे देखो, सी नाम को हम लोगों ने एक मेथड बनाया, ठीक है, सी नाम का एक मेथड बनाया, उसके आगे गेट कीवर्ड लगाया। जैसे गेट कीवर्ड लगाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, पहले तो नॉर्मली असाइन कर देते थे, लेकिन नहीं, इस बार क्या हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। देखो क्या करें, दिस डॉट अंडरस्कोर ए बेसिकली हम लोग को हाई देगा एंड दिस डॉट अंडरस्कोर बी हम लोग को ब्रो देगा। बोल रहा है अगर बेसिकली बोल रहा है कि ए नाम का अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अंडरस्कोर ए नाम का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, अंडरस्कोर बी नाम का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है और कुछ है उसमें असाइंड, तो आपको रिटर्न करना है ए बी स्पेस के साथ, क्या, ठीक है। अगर नहीं, इनमें से एक गायब हो या एक हो दूसरा नहीं हो या दोनों ही गायब हो, तो यहाँ पे लिखना है रिटर्न मिसिंग ए और बी और बोथ लिख देते हैं, और बोथ। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हम लोग का इफ एल्स स्टेटमेंट को, और बोथ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सी, अरे सी तो मेथड था, पेरेंथेसिस गायब क्यों है? पेरेंथेसिस गायब है क्योंकि गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते ही ये पूरा का पूरा मेथड था जिसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट था, जो पॉसिबल हुआ क्योंकि गेट कीवर्ड लगाए थे, तो ये जो पूरा का पूरा चीज था वो अब बन चुका है एक प्रॉपर्टी। ये सेल्फ इन्वोकिंग हो चुका है, प्रॉपर्टीज आर सेल्फ इन्वोकिंग। जब कभी अगर आप चाहते कि हाई रिटर्न हो तो ऑब्जेक्ट 1 अंडरस्कोर ए करते और एंड में पेरेंथेसिस नहीं लिखते, एंड पे ये वाला नहीं लिखते, सिंपली अंडरस्कोर ए लिखते, ऑब्जेक्ट का नाम अंडरस्कोर ए। क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होते हैं तो प्रॉपर्टीज ऐसा मेथड है, प्रॉपर्टीज आर सेल्फ इन्वोकिंग बट मेथड्स आर नॉट सेल्फ इन्वोकिंग। बट गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करने से जो मेथड है ये प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लग जाता है और ये सेल्फ इन्वोकिंग हो जाता है, इसलिए हाई ब्रो आउटपुट आएगा क्योंकि हाई और ब्रो। अच्छा बताओ, अगर एक मिसिंग होता, ए अगर एग्जिस्ट नहीं करता या ए का कोई वैल्यू नहीं लिखा रहता, तो आउटपुट क्या आता? मिसिंग ए और बी और बोथ, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स होने की वजह से आगे तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चेक करता है ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स, ये वाला पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन ऑफ उसके कंडीशनल फ्लो की वजह से एल्स पे आ जाएगा और फिर नीचे चेक करेगा और एग्जीक्यूट क्या करेगा? एल्स स्टेटमेंट मिसिंग ए और बी रिटर्न कर देगा। अच्छा, रिटर्न नहीं कर पाएगा इसलिए console डॉट लॉग अंडरस्कोर ये कर दो तो आपको ये रिटर्न कर देगा मिसिंग ए और बी। और होपफुली मेड सेंस। अब हम लोग गेटर्स देखते हैं, सॉरी सेटर्स देखते हैं। गेटर्स तो देख लिया यार, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वीडियोस बनाने में, दिन चला जाएगा। व्हाटएवर, न्यू पॉइंट, सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स। मतलब बेसिकली, अच्छा क्या बकवास कर रहे हैं यार, बेसिकली यहाँ पे सेट मेथड पढ़ेंगे। गेट तो पहले पढ़ ली, अब सेट की तरफ देखते हैं। ओके, आपको पता ही होगा कि सेटर्स जो करेंगे बेसिकली वो क्या करेंगे, असाइन करने में हेल्प करेंगे मेथड प्रॉपर्टीज को एक मोर डिटेल्ड वे में। यहाँ दिख रहा है डिटेलिंग दिख रहा है, तो वही कहता है दिस सेटर्स आर वेरी वेरी, आई डोंट नो, मतलब हाउ कैन वन लर्न इट एज अ कॉन्सेप्ट, टू मच डिटेलिंग, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाटएवर, लेट्स सी। तो देखो हम लोग कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ए नाम का मेथड है जो कंटेन करता है var1 या 01 नाम का पैरामीटर। समझ में आ रहा है? सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ए नाम का मेथड बनाया। बेसिकली दूसरा प्रॉपर्टी ही मान लो ना जी, मेथड मान लो। अच्छा, सेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, सेटर्स का काम क्या है कि एक डिटेल्ड वे में प्रॉपर्टी को असाइन करना। अब बताओ, अंडरस्कोर ए लिखा गया है तो क्या हम चाहते हैं कि ये चेंज हो? नहीं चाहते ना, तो सेफली चीजों को असाइन कैसे करेंगे? सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। ओके, मेरे को ज्यादा इसके बारे में समझ है नहीं अभी फिलहाल के, विथ नो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, आई रियली very limited with the idea of this set and get keywords, but still जो हम जानते हो बता रहे हैं। सेट कीवर्ड का इस्तेमाल ये अंडरस्कोर के अंदर क्या है? डिटेल्ड वे में इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखे गए किसके अंदर? मेथड के अंदर। देखो यहाँ पे देखो, टाइप ऑफ जो ये ऑपरेटर है, टाइप ऑफ ऑपरेटर है टीबी स्मॉल और ओवी स्मॉल, ठीक है, ऑपरेटर है ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या चेक करेगा? हम लोग का पैरामीटर चेक करेगा। किसका पैरामीटर? हम लोग का मेथड का पैरामीटर जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया था वो क्या चेक करेगा? बेसिकली टाइप ऑफ ना एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है कि यहाँ पे अगर ना वेरिएबल अगर एक नंबर होगा तो ऐसा दिखाएगा आउटपुट में नंबर। अगर यहाँ पे ना सदफ लिखोगे टेक्स्ट के अंदर तो दिखाएगा स्ट्रिंग कोट्स के अंदर। तो बेसिकली जब हम लोग का पैरामीटर क्या होगा? नंबर होगा। स्ट्रिक्टली इक्वल टू कहते हैं इसको कि भाई समझ रहे हो ना, टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होना चाहिए। बेसिकली एग्जैक्टली अब नंबर आउटपुट आए कि भाई जो वेरिएबल जो पैरामीटर है वो एक नंबर हो, तो तभी ये इफ स्टेटमेंट रन करना है।
ठीक ठीक। तो उसके अंदर आप देखते हो दिस कीवर्ड का यूज और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल और अंडरस्कोर ए। तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर घुस जाता है। दिस बेसिकली पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स आवर कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट 2 है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ही तो है, ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ही है ना भाई अंडरस्कोर ए। वो एक्सेस कैसे कर पाएगा, ये तो एक मेथड ही है ओवरऑल, इसको ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं होता ना प्रॉपर्टीज का, है ना, समझ रहे हो। तो ये दिस कीवर्ड का यूज, डॉट अंडरस्कोर ए इक्वल टू साइन का इस्तेमाल, और उसको क्या असाइन किए हैं हम लोग, उसको असाइन किए हम लोग वेरिएबल 1, जो नंबर यहाँ पुट करेंगे वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू अपडेट होकर के 0 1 हो जाएगा। बट यार मतलब ए का वैल्यू तो चेंज हुआ ही भाई। बट बेसिकली सेट कीवर्ड्स के सेटर्स के मदद से क्या होता है, एक डिटेल्ड आप कंडीशन दे सकते हो कि तब ही चेंज करना है, तभी असाइन करना है, अदरवाइज असाइन नहीं करना है। तो सेटर्स का वो इस्तेमाल है, ठीक है। जब नंबर होगा तभी असाइन करेगा, अगर नहीं होगा, यहाँ पे अगर टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लिख दिया या अनडिफाइंड डेटा टाइप कर दिया, ठीक है, तो एल्स कीवर्ड रन करेगा, यू मस्ट असाइन अ नंबर टू ए। देखते हैं हम लोग एग्जांपल। ऑब्जेक्ट 2 क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए। डॉट ए मतलब इस मेथड को बुलाना है, किसको बुलाना है, इस सेटर मेथड्स को बुलाना है, डॉट ए। डॉट ए करके हम लोगों ने क्या किया, डॉट ए करके हम लोगों ने बोला कि ए का वैल्यू हम लोगों ने 40 रख दिया, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसको 40 कर दिया। ये सेटर्स को यूज करने का तरीका है, यहां से यूज करने का तरीका है। ये तो डिक्लेयर किया सेट मेथड का इस्तेमाल, सेटर्स का इस्तेमाल करके इसको डिक्लेयर किया है, इसको यूज करते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट टू डॉट ए मतलब ये जो हम लोग का सेटर मेथड है डॉट, ठीक। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हम लोग सेटर ए जो मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसको असाइन किया है var o1 is 40, वेरिएबल o1 is 40 नंबर है ना, तो फिर वो अंदर घुसेगा, टाइप ऑफ var 1 चेक करेगा कि हाँ भाई नंबर ही है, तो क्या करेगा, अंडरस्कोर ए जो 1 है उसको क्या कर देगा, 40 कर देगा, तो आउटपुट 40 आएगा। सिमिलरली जब आप क्या करते हो, सेम प्रोसेस लिखते हो, सेटर्स को फिर एक्सेस करने का कोशिश करते हो, लेकिन इस बार var 1 के जगह आप यहाँ पे हाई लिखते हो, टेक्स्ट var 1 को असाइन करते हो हाई, जो एक टेक्स्ट है, which will not be equal to a number, will be equal to a text, since if statement doesn't run तो ऑटोमेटिकली else स्टेटमेंट रन होता है और दिखाता है कि यू मस्ट असाइन नंबर टू ए। होपफुली सेटर्स थोड़ा मोड़ा क्लियर हुआ। ओके सो अब ये जो फैक्ट्री फंक्शंस के बारे में हम लोग बेसिकली रिवाइज करेंगे कि क्या पढ़े थे, फैक्ट्री फंक्शंस होता क्या था। तो फैक्ट्री फंक्शन बेसिकली आपको अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मतलब बेसिकली खुद के क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सिंपल वर्ड्स में बनाने के लिए क्विकली और रिपीटेडली। भाई अगर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका कीज तो सेम रह रहा है बट वैल्यूज बार बार चेंज हो रहा है, कीज तो सेम रह रहा है लेकिन वैल्यूज बार बार चेंज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कीज सेम रह रहा है, वैल्यूज बार बार चेंज हो रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। ऐसे मान लो नेम, रोल नंबर, ये ठीक है, वो तो सेम रहने वाला है, बस नेम हो जाएगा सदफ, कभी हो जाएगा मान्या, और नंबर हो जाएगा रोल नंबर 1 तो कभी रोल नंबर 2, देख रहे हो रोल नंबर सेम रहा है लेकिन वैल्यूज चेंज हो रहा है। वैसे केसेस में हम लोग फैक्ट्री फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, आई एम एग्जॉस्टेड, प्लीज देखो कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके आवर फैक्ट्री नाम का हम लोगों ने क्या बनाया है, हम लोगों ने बनाया है एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फाइनली एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट, तो ये आवर फैक्ट्री नाम का एक ऑब्जेक्ट आवर फैक्ट्री नाम का एक मेथड है जो रिटर्न करता है, एक्चुअली ये मेथड है जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। होपफुली मेकिंग सेंस, राइट। ये है फंक्शन ऑब्जेक्ट, फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, फंक्शन ऑब्जेक्ट व्हाटएवर। तो आवर फैक्ट्री नाम का हम लोगों ने क्या बनाया, मेथड बनाया, उसका वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आप कितना भी दे सकते हो, वैल्यू 4, समझ रहे हो, कितना भी आप वैल्यू दे सकते हो। बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं, यस। फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स को पैरामीटर बोलते हैं। तो ये वाला फंक्शन का इसके अंदर क्या आ रहा है, पैरामीटर सब आ रहा है, क्या आ रहा है, पैरामीटर सब आ रहा है, ठीक है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और पैरामीटर्स जो पॉइंट आउट कर रहा होता है एक पॉइंट आउट कर रहा होता है फंक्शन बॉडी की तरफ, यहां से लेके यहां तक है इसका पूरा फंक्शन बॉडी, ठीक है। तो फंक्शन बॉडी में एक रिटर्न कीवर्ड लिखा है जो बेसिकली सेव कर देगा मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट को, और आप ध्यान से देखो तो कीज 1, 2, 3 है, ठीक है। और हम लोग का जो पैरामीटर्स है उसको वैल्यू की तरह यूज किया, हम लोग का जो पैरामीटर्स था, हम लोग का जो लोकल वेरिएबल्स था उसको वैल्यू की तरह यूज किए हैं, वही चेंज हो रहे हैं ना, वही चेंज हो रहे हैं, ठीक। अब देखो हम लोग ने क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके 3 मैजिक वर्ड्स नाम का हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया। दो बेसिकली 3 मैजिक वर्ड्स क्या हुआ, 3 मैजिक वर्ड इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो चीज रिटर्न होता है वही वो चीज बन जाता है, तो 3 मैजिक वर्ड्स क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोगों ने असाइन किया आवर फैक्ट्री नाम का मेथड, और हम लोगों ने पैरामीटर्स को चेंज करके आर्ग्यूमेंट्स पुट कर दिया,
हम लोग का वैल्यू 1 का आर्ग्यूमेंट 1 आई, वैल्यू 2 का आर्ग्यूमेंट लव और वैल्यू 3 का आर्ग्यूमेंट यू। स्पेसेस भी मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। जब बेसिकली आप इसको रन करते हो ना, जब इसको console.log करते हो और सिंपली लिखते हो 3 मैजिक वर्ड्स लिखते हो, ये वाला चीज़ लिखते हो, तो आउटपुट आता है आई लव यू। ऐसा नहीं आता है, आउटपुट आता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की आई, की 2 लव, की 3 यू। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, फुल स्टॉप लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो की 1 आई, की 2 लव, की 3, फिर इसको आप इसका वेरिएबल को चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो पोलियो चमार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट्स में चेंज कर दो, नंबर लिख दो, जो लिखना लिखो, की सेम रहेगा, वैल्यूज पर चेंज होगा। देख रहे हो कितना फास्ट हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली समझ में आया हो, होपफुली। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, दिस वीडियो मेकिंग थिंग्स टेक्स सो मच ऑफ लॉट ऑफ टाइम, बट 1 बज के भाई मैं कितना पहले स्टार्ट किया था, आवर्स पहले भाई, एंड स्टिल द ट्यूटोरियल इज नॉट येट मेड। व्हाट डू आई वांट यू टू गाइस टू जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट। Maybe I really don't want that. I just want to make videos, so I'm making it. That's it. Sorry for the rant. Let's get to the topic. Okay. There are different ways to use object. This very word मैंने बहुत बार गलत बोला है। गलत मतलब गाली नहीं दिया है, मतलब इसको मैंने प्रोनाउंस गलत किया है। The thing is, it's destructuring. Okay. I've been saying it, destructing, whatever not possible, I have said that. तो destructuring, ठीक है, ऑब्जेक्ट को destructure करना। तो one way is the property value shorthand, ठीक है, and another is destructured assignment। देखो सिंपल, यहाँ पे कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके वैम्पायर, ये जो एग्जांपल है, ये वाला मैंने पास के वीडियोस में यूज किया है, मैंने फिर से यूज करा है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो, कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके वैम्पायर नाम का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके अंदर नेम की है, रेसिडेंस की है, प्रेफरेंस की है, और प्रेफरेंस की होने के साथ साथ एक पेरेंट ऑब्जेक्ट भी है जो कंटेन करता है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी है जो कंटेन करता है 2 प्रॉपर्टी, डे और नाइट। मतलब एक वैम्पायर एक मल्टी या फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसका नाम है प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस के अंदर 2 प्रॉपर्टी है, डे एंड नाइट, कंटेनिंग स्टे इनसाइड एंड सेटिस्फाई एपेटाइट, नाम का 2 प्रॉपर्टी। सो हो गया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया हम लोगों ने। अब राइट हैंड साइड पे देखो, 1 वे और अनदर वे, यहां से लेके यहां तक 1 वे, ये दूसरा वे है। पहला क्या हो गया, property value shorthand, and another is destructed assignment। देखो property value shorthand सीखो। property value shorthand ये होता है कि देखो कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया रेसिडेंस नाम का। अब ध्यान से देखो तो रेसिडेंस नाम का पहले से एक की एग्जिस्ट करता है। क्या कोई दिक्कत पड़ेगा अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल बाहर बना दिया? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकली स्कोप्ड है, राइट, ब्लॉक कोड के अंदर है। बाहर में ग्लोबल स्कोप, यहाँ पे इसके बाद लिख रहे हो तो आप क्रिएट कर सकते हो ग्लोबल स्पेस में एक वेरिएबल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो। सो आराम से कर सकते हैं। रेसिडेंस नाम का हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रेसिडेंस नाम का वेरिएबल बनाया और उसको वैम्पायर नाम का ऑब्जेक्ट असाइन किया। बस वैम्पायर नाम का ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया, और वैम्पायर नाम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग नेविगेट करते हुए रेसिडेंस नाम के इस प्रॉपर्टी के वैल्यू को एक्सेस किए, दैट इज ट्रांसिल्वानिया। तो बेसिकली रेसिडेंस के अंदर क्या ट्रांसिल्वानिया क्या कर रहा है, सेव हो गया है, ठीक है। तो हम लोग उसको console.log रेसिडेंस करते हैं तो हम लोग को ट्रांसिल्वानिया स्क्रीन के आउटपुट पे दिखते को मिलता है। तो ये हो गया 1 वे, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्टहैंड का तरीका। दूसरा तरीका होता है डिस्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट में कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आप कुछ और कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को बजा सकते हो, मतलब कि टाइपिंग ईजी हो जाता है, इसमें बस करना कुछ नहीं पड़ता। मस्त बात यह है कि अगर आप नोटिस करो, वेरिएबल और हम लोग का जो की है सेम होने की वजह से उसको कॉन्स के बाद वेरिएबल के नाम को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। भाई वेरिएबल का नाम और की तो दोनों सेम ही है, बस को इक्वल टू असाइन कर दो और वैम्पायर लिख दो, समझ रहे हो। तो होगा क्या, रेसिडेंस के अंदर घुस के, वैम्पायर के अंदर घुस के रेसिडेंस नाम का ये जो पूरा की है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पेयर, उसको उठा के सेव कर दिया जाएगा रेसिडेंस के अंदर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली console.log आउटपुट रेसिडेंस करोगे तो आपको ट्रांसिल्वानिया आउटपुट में दिखेगा। होपफुली मेड सेंस। मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। दिस इज द शॉर्ट तरीका ऑफ राइटिंग थिंग, डिस्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट। होपफुली मेड सेंस। इससे ज्यादा दिमाग लगाने का है भी नहीं, पता नहीं कहाँ यूज आएगा, फिलहाल तो मेरे को कोई आइडिया नहीं कहाँ यूज आएगा, बट इतना पता है मेरे को, थोड़ा मोड़ा समझ में आया शायद।